Hello, students. Welcome back to Evolution classes. Today, we are going to talk about the new video which involves the phylum Ctenophora. Now, before I start with this phylum and before I talk about the different aspects of the Ctenophora, I must say that when we talk about Ctenophora, previously, Ctenophora as well as Nidaria were considered to be in the same phylum. But due to the absence of certain things, Ctenophora has got its own phylum and Nidaria has its own phylum. So basically, what is the difference? Ctenophora also contains Coelenterol, the gastrovascular cavity that we know of, but it do not have the nidoblasts, so which the Nidarians have. So that's why Nidarians, as there is presence of nidoblasts in the Nidarians, they are considered to be the Nidarians itself. And as there absence of nidoblast cell in Ctenophora, they are separated from the Nidarian itself. Otherwise, more or less, you can find a lot of similarity in Ctenophora as well as Nidarians. Just because of this one specific reason, and also we know the presence of the nidoblast specifies the Nidaria. Right, so it is absent over here, so definitely it is not going to be inside the phylum Nidaria. So apart from that, we are also going to talk about the different aspect of it. Firstly, why Ctenophora is also called as what? It is also called as sea walnut or comb jade. This is first thing. They are also called as sea walnut or the comb jade. Over here, you can see I have written one trick to remember all the aspects. More or less 90% of the aspects is given over here in the trick. What is the trick? देखो यहाँ पे लिखा हूँ, अब CD रैट एंड माउस को फीड कर दो, बस यही याद रखना है. अब CD रैट एंड माउस को फीड कर दो, यही से सब कुछ मिल जाएगा. कैसे मिलेगा देख. अब का जो बी है, बी से यहां पे मैं क्या मेंशन किया हूं? Bioluminescence. Now, when we are talking about bioluminescence, you need to understand what is bioluminescence, the property to emit light. I write over here, bioluminescence is nothing. Bioluminescence is nothing, but it is property to emit light. Property to emit light. Sir, किस किस्म का light emit करना? What kind of light it actually emits, and for what purpose also? And how does this light also is produced? The light it emits is blue-green. It emits blue-green colored light. Now, when you say कि blue-green colored light, तो सर समझ में आ गया, emit कर रहे हैं, कैसे करके ये light produce हुआ सर? If I consider the what do you call this Ctenophora, but it can be considered as pleurobrachia. That is the diagram which is given in your NCERT also. We have Ctenoplana, all right. We have Barrow, right. We have Hormiphora. A lot of examples are there, but we try to understand what is bioluminescence over here. Here, it contains a cell which is called as photocytes. It contains a cell which is called as photocytes. And this photocyte cell contains one substrate. Very interesting substrate it has. What is the name of that substrate? It has a substrate. It contains a substrate, and the substrate name is what? Luciferin. And the substrate name is what? Luciferin. Now, getting this luciferin comes in contact with oxygen under
the catalyst reaction of enzyme luciferase, it emits blue-green light. This is the mechanism. This is the mechanism. The photosynthetic cells of a particular ctenophora, which has a substrate which is called luciferin. When it comes in the contact with oxygen, under the catalytic effect of luciferase, the light is emitted. Now, why this light is emitted? What is the function of this light? To this is basically क्या होता है कि अगर कोई लाइट फटाक करके तुम्हारा मुंह के सामने कोई मारा तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? इट इज एक्चुअली टू अवॉइड प्रीडेशन, और टू ल्योर अ पर्टिकुलर प्रे. दो चीज के लिए ये बायोल्यूमिनेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. किस चीज के लिए होगा बोलो? पहला चीज होगा टू अवॉइड प्रीडेशन, and second to lure prey. हो गया. अब आपका बी से तुमको जो बी से बायोल्यूमिनेसेंस का जो प्रोसेस है वो भी मैं यहाँ पे समझा दिया. आप इफ इन केस यू डिडंट अंडरस्टूड प्रीवियसली. अब देखो सी से क्या होता है. आपके पास सी से होता है कॉम्प्लेक्स. ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कितना होता है गुरु? 8. और ये रिसाइज में कौन सा चीज के लिए इन्वॉल्व है? लोकोमोशन में. सर कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन का था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना चाहिए तुमको. कॉम्प्लेक्स का देखो, इफ आई कॉन्सिडर 8 कॉम्प्लेक्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर कॉम्प्लेक्स में एक्सटर्नली अरेंज है. ये ऑल दिस कॉम्प्लेक्स आर एक्सटर्नली अरेंज, और हर कॉम्प्लेक्स में ऑल ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिलिया अरेंज होते हैं. All these things you see these are all the cilia. तो ये कॉम्प्लेक्स में जो cilia होते हैं वही एक्चुअली लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं. एंड these complex are externally arranged. These are externally arranged. सेकेंडली डी से क्या होगा सर? डी से दो चीज याद रखना पड़ेगा, डिप्लोप्लास्टिक एंड इट्स डाइजेस्टिव फंक्शन. डिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या है? इट विल बी हैविंग ओनली 2 layers, 2 germ layers. What are those 2 germ layers? एक होगा ectoderm और एक होगा endoderm. These are the 2 germ layers which it will be having. Okay. Now we come to the digestion part. में क्या बोला था? Most of the features relate with what? Nidaria. Nidaria में भी देखे थे, वहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं. तो यहां पर भी है both extracellular as well as intracellular digestion present. और याद करके देखो, मैं बोला था एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन पहले होगा, उसके बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा. एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन मुंह के सामने होगा, याद है? माउथ के सामने होगा, जहां से वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगे, वहीं पे एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा वो. और इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहाँ पे होगा? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर सिलेंटेरॉन के अंदर, याद है ना? तो यही होगा. इंट्रासेलुलर कहाँ होगा? यहाँ पे सिलेंटेरॉन में होंगे, इनसाइड द सिलेंटेरॉन द कैविटी. और एक्स्ट्रासेलुलर कहाँ पे होंगे बाबा? माउथ की तरफ होंगे. ओके. सो पहला एक्स्ट्रासेलुलर, दूसरा इंट्रासेलुलर. अब देखो रैट से क्या होगा? रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है याद है? कोई भी चीज को अगर कोई भी प्लेन से काटो तो वो 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएंगे. कोई भी प्लेन, एनी काइंड ऑफ प्लेन, इफ यू कट a particular organism, even in the flower also you will come to know about actinomorphic and gyromorphic. I will tell you what is that also in the context of radial and bilateral symmetry. तो radial symmetry का मतलब क्या है? radial symmetry का मतलब है एक चीज है, कोई भी प्लेन से काटो, ऊपर नीचे साइडवेज कहीं से भी काटो, कहीं से भी काटने से 2 इक्वल हाफ्स बनेंगे. तो सिमिलरली यहाँ पे अगर इस चीज को कहीं से भी काटो, इस साइड से काटो, ऐसे काटो, लैटरली काटो, लॉन्गिट्यूडिनल काटो, ट्रांसवर्सली काटो, कुछ भी काटो, तो उसमें 2 इक्वल हाफ्स रहेंगे. टी से क्या होगा? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन यहां से स्टार्ट. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन यहां से दिखेंगे. ओके. सेलुलर लेवल अभी नहीं है, यहाँ पे सब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगे. माउस से क्या होगा? माउस का एन से देखो 2 चीज याद रखना पड़ेगा, मेरिन एंड मोनोशियस. याद करके देखो, निडारिया में पढ़े थे, वहां पे मेरिन भी है
एज वेल एज फ्रेश वाटर भी है, क्योंकि वहां पे मैं एक टर्म यूज किया था मोस्टली मेरीन, बट यहाँ पे एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्सक्लूसिवली मेरीन, मतलब सिर्फ सॉल्ट वाटर में ही ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। मोनोशियस का मतलब क्या है, सेक्स सेपरेट नहीं होंगे, मतलब दिस इज गोइंग टू बी हर्माफ्रोडाइट, दिस इज गोइंग टू बी हर्माफ्रोडाइट। अब देखो माउस का ओ एंड एस को ही मैं यूज किया हूं, ओ एंड एस का क्या है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इन केस ऑफ इंटेरिया याद करके देखो वहां पे सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल दोनों किस्म का रिप्रोडक्शन हो रहा था। अब देखो माउस का ई और फीड का एफ, ई एफ, यहां पे ई और एफ को हम यूज किए हैं और ये बोला है क्या, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और फीड का आईडी से देखो मैं लिखा हूं क्या, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ही क्या हो जाएगा ग्रुप, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ही हो जाएगा एक इंटरमीडिएट क्या रहेगा, आफ्टर जाइगोट के बाद क्या बनेगा, बोलो लार्वल स्टेज। आफ्टर जाइगोट के बाद जब इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज आते हैं तब उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। तो सिमिलरली ओवर हियर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो लार्वा का नाम क्या होगा, लार्वा का नाम है सीडीपी लार्वा, इट इज कॉल्ड एज द सीडीपी लार्वा। नाउ वी कम टू सर्टेन एक्स्ट्रा पॉइंट्स ओवर हियर रिगार्डिंग टिनोफोरा। पहले एक्स्ट्रा पॉइंट को जब बोलेंगे कि यहाँ पे पॉलिंग स्टेज नहीं है, जो वेसल जैसा पॉलिंग स्टेज है, यहाँ करके देखो निजारिया में बोला था पॉलिंग स्टेज एज वेल एज द मेडूसा स्टेज जो है कि होगा अम्ब्रेला लाइक, और पॉलिंग स्टेज होगा वेसल लाइक। तो यहाँ पे पॉलिंग स्टेज जो वेसल लाइक है यहाँ पे एब्सेंट है। टेंटेकल्स की बात करते हैं, ये देखो ब्लू लाइन से मैं क्या बनाया हूं, टेंटेकल्स। टेंटेकल्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। सो अगर प्रेजेंट है तो टेंटेकल्स कितने रहेंगे, दो, ओनली टू टेंटेकल्स कैन बी प्रेजेंट। ऑलराइट, नाउ कम टू द मैटर ऑफ टेंटेकल्स। टेंटेकल्स कैसे होंगे सर, टेंटेकल्स सॉलिड होंगे एंड इट विल possess some adhesive cells। देखो यहाँ पे टेंटेकल्स में हर तरफ एक ब्लैक डॉट्स बनाए हैं, यही वो एडेसिव सेल्स है जिसको बोलते हैं क्या, कोलोब्लास्ट, जिसको लैसो सेल्स भी बोले जा रहे हैं। These are the adhesive cells which is present in the tentacles which is called as कोलोब्लास्ट। मूवमेंट पहले ही बता दिया था कि पूरा देखो ये कॉम्प्लेक्स जो है एक्सटर्नली अरेंज है, उसमें पूरा ये तुम्हारा सीलिया अरेंज रहेंगे। तो मूवमेंट बेसिकली किसके द्वारा हो रहा है, सीलिया का द्वारा हो रहा है, जो 8 मीडियन कॉम्प्लेक्स के ऊपर अरेंज है। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ये स्टेटमेंट अभी सही बैठा। इसमें क्या बोला था, सिलेक्टेरॉन होंगे बट न्यूरोब्लास्ट नहीं होंगे। दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन, this is one of the primary reason, the presence of the coleneteron and the absence of the neuroblast. Absence of the neuroblast was the primary reason why this Ctenophora has been deviated, not in the what do you call that, not in Cnidaria, but it is a separate phylum as Ctenophora। समझ में आया इधर। अब देखो तुमको अगर एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे, ध्यान से अगर ज्यादा फोकस करके देखोगे तो उसमें जो प्लूरोब्रैकिया का जो डायग्राम दिया गया है, दिस इज प्लूरोब्रैकिया बेसिकली, प्लूरोब्रैकिया जो डायग्राम दिया गया है ना, उस डायग्राम से अगर ध्यान से देखोगे तो बीच में ना वो जो कॉम्प्लेक्स के बेसिकली अंदर है एक छोटा सा ज्यादा दिखने में दिक्कत होता है, वो वहां से ना एक छोटा स्ट्रक्चर जैसे निकला है, और वहीं से देखना ये तुम्हारा टेंटेकल्स बाहर निकाल दिया है। वो जो छोटा हॉलो स्ट्रक्चर है अंदर, उसको बोलते हैं क्या, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के साइड में जो ये हाथ जैसे निकला है, ये सब रिब स्ट्रक्चर है, वही रिब स्ट्रक्चर से एक्चुअली ये टेंटेकल्स बाहर की तरफ निकला है। सो दिस इज द बेसिक थिंग regarding your Ctenophora। you need not to know much about more detail। इसमें तो बहुत सारे कुछ बोल भी दिया हूँ, इसको अगर ध्यान से सुन के अगर नोट बना लोगे, ये ट्रिक थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आई डोंट थिंक टिनोफोरा से आते हुए कोई भी क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम्पल्स का बात करते हैं, एग्जाम्पल्स कौन कौन सा है इसको भी याद रख लो। व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द टिनोफोरा, अगर कहो तो नॉर्मल एग्जाम्पल याद रखो। कौन कौन से एग्जाम्पल्स है,
एग्जाम्पल सेट प्लूरोब्रैकिया, है ना, टिनोक्लेना, बेरो, Hornifora, system, ये सब एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाते हैं. So I hope that you have understood all the things that have been said over here and what has been written over here. And keep on working hard. I will be coming back with the next lecture as well. ठीक है, उसमें तुमको बहुत और भी अच्छा चीजें मिलने को मिलेगा. ठीक है, alright. So यही है, ठीक है. Kindly take the screenshot if it is needed for you, and keep on working hard, keep on grinding. Hope these videos are helping you also, and meet you very soon. Thank you.